Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy in class 12th, where we were dealing with the issue of debenture and the various accounting treatment concept and phenomena and terminologies regarding that, where we have already dealt with the concept of issue of debenture and with the concept of debenture, its types, features, and accounting treatment, and so many more regarding that. Okay, students, today we will deal with the another topic, and that is very important and very interesting. A little bit practical also, sometimes treated by the company regarding when the debenture are issued, but the cash are not taken as a consideration for this issue. It means when the company when the company taking over the assets regarding from any general public or from any vendor, and the various payment regarding to that are not made by the company in cash. ओके, कंपनी जब कोई असेट्स लेती है जनरल पब्लिक से या वेंडर से और उस असेट्स की पेमेंट के लिए वो कैश ना दे करके उस कैश की वैल्यू के बराबर डिवेंचर को इशू कर देती है, आइदर दिस डिवेंचर में इशूड एट प्रीमियम, डिस्काउंट और एट पार, देन दिस टाइप ऑफ issue of debenture is called the issue of debenture as a consideration other than cash. So let's talk about the concept and phenomena and the various accounting treatment regarding the issue of debenture as a consideration other than cash. First of all, we will deal with the concept of consideration. Means what is consideration? Consideration literally means something in return. Suppose A and B are two parties where A is the buyer and B is the seller. Okay, well, these two parties make the transaction between each other, make the purchase and sale with each other, then the parties ultimately interact with each other, and A gives money to B, and B gives goods and services as the payment for that money. Okay, but sometimes if the payment is not present there, means the transaction become, it means when the cash is not absent, then the transaction become credit transaction, and such credit transaction are ultimately create a liability to the buyer. In that case, the buyer have to pay. The buyer have to oblige that the debt have to be paid in future. Okay, and in that case, some document, some retail acknowledgement are issued in this regard. Suppose we are taking the example of company, then company make a credit from transaction from general public or make a loan from public. Okay, if the company take the loan from the general public, loan or borrowing from general public, and such loan are usually in the terms of cash, and for this cash company issued the debenture to the general public. But if the cash is not present in the transaction from the side of general public, and company taken some fixed assets in this regard, and as a payment of this fixed assets, company issues the debenture
In that case, that debenture is a part of consideration other than cash. कंपनी क्या करती है, अभी तक हमने ये देखा था कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी पब्लिक के पास जाती है, उनसे लोन लेती है और लोन लेकर के जो है उस लोन के बदले में डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि कंपनी लोन नहीं लेती बल्कि कोई फिक्स असेट्स लेती है और इस फिक्स असेट्स के बदले में डिवेंचर इशू करती है ताकि उसे पैसा न देना पड़े, है ना। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर कंपनी इशूज डिवेंचर एज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है और इस डिवेंचर को कंसिडरेशन अदर देन कैश की कंडीशन पे इशू करती है, यानी कि अब इस फिक्स असेट्स के बदले में उसे कुछ भी नहीं देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कहती है दैट वी आर इशूइंग डिवेंचर एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कंपनी कभी पेमेंट नहीं करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो सच डिवेंचर में इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, हम तीनों ही तरीके से डिवेंचर को इशू कर सकते हैं और तीनों ही तरीके हमारे लिए सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे जिस तरीके से हमने पढ़ रखा था इन द नॉर्मल इशू व्हेन कंपनी इशूज द डिवेंचर एज अ कंसिडरेशन फॉर द कैश, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे डिवेंचर के इशू के लिए होगी, बट यहाँ पे जो फिक्स असेट्स लेते हैं उसके क्रेडिट परचेज की एक एंट्री और कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में कंपनी दो एंट्रीज करती है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो स्टेप में होता है। पहला, व्हाइल परचेजिंग द असेट्स, तो जब असेट्स परचेज करती है कंपनी तो ऐसी कंडीशन में जो भी असेट्स का नाम होगा उस असेट्स के नाम को हम डेबिट करेंगे। मशीन है तो मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, और इसे बेचने वाले के नाम को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंट्री हो जाएगी हमारी, नरेशन हो जाएगी हमारी, दी असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट या दी असेट्स परचेज फ्रॉम, जो भी है पार्टी का नाम, ठीक है। असेट्स परचेज फ्रॉम डेटर या वेंडर, इस वेंडर का नाम लिखेंगे और इसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे हम, व्हाइल इशूइंग डिवेंचर एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। इस परचेज की पेमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जब कंपनी परचेज की पेमेंट के लिए डिवेंचर इशू करती है तो ऐसी कंडीशन में जो है कंपनी डिवेंचर के इशू की ट्रीटमेंट सेम वही करती है जैसे हमने पहले कर रखी थी। सपोज वी आर इशूइंग डिवेंचर एट पार, देन द पार्टी टू whom we are issuing the debenture, that will be debited because on the basis of the rule of personal account, and to X% debenture will be credited, ठीक है। अगर हम इस डिवेंचर को पार पे इशू कर रहे हैं तो सेम एंट्री होगी, नरेशन में स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, दैट दी X% डिवेंचर issued at par, ठीक है। लेकिन अगर यही जो डिवेंचर है वो प्रीमियम पे इशू होगा तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि जो डिस्काउंट है और जो प्रीमियम है वो सेम इफेक्ट देगा एज पर द नॉर्मल एंट्री,
ठीक है। जो नॉर्मल एंट्री हमने कर रखी है वही नॉर्मल एंट्री हमारी रिकॉर्ड होगी। जैसे डिस्काउंट को डेबिट करना होता है तो हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट करना होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि जो एंट्री हम करने जा रहे हैं उस एंट्री में हमारा प्रीमियम या डिस्काउंट है या नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें इरेज करने से पहले, दैट कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। कंसिडरेशन लिटरली मीन्स समथिंग इन रिटर्न एंड वेयर रिटर्न स्टैंड फॉर द पेमेंट। अब ऐसी कंडीशन में इसको एग्जांपल के रूप में हमने समझाने के लिए दो पार्टी का नाम लिया, वेयर ए इज द बायर बी इज द सेलर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब ए बायर है और बी क्या है, सेलर है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, बीइंग अ बायर ए जो है बी को कुछ पेमेंट देता है और बी जो है इस पेमेंट के बदले में ए को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दैट इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर कैश नहीं होता है, ठीक है, तो कैश की एब्सेंस में इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए एक रिटेन एक्नॉलेजमेंट होती है। समटाइम इट इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज सम एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और यू कैन से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी हम इसको इशू करते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा, अगर हम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो कंपनी जो है जनरल पब्लिक से नॉर्मली डिवेंचर के केस में लोन लेती है और इस लोन के बदले में डिवेंचर इशू करती है। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को डिवेंचर इशू करती है और इस डिवेंचर के बदले में कंपनी को लोन मिलता है, कैश मिलता है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इस कैश की जगह फिक्स असेट्स भी पब्लिक से या वेंडर से ले करके उसके बदले में डिवेंचर इशू कर सकती है, ताकि उससे इस फिक्स असेट्स की पेमेंट ना करनी पड़े, उस फिक्स असेट्स का कंसिडरेशन ना देना पड़े। ठीक है, और अगर कंसिडरेशन कैश के रूप में नहीं देगी तो उतने पैसे का, उस कैश की वैल्यू के बराबर का डिवेंचर को इशू कर देती है। आइदर दीज डिवेंचर में इशूड एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, ऑल द ऑप्शन आर अवेलेबल टू द कंपनी। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से करती है जैसे हमने इशू की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दो स्टेप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। पहले हम परचेजिंग की एंट्री कर लेते हैं। परचेजिंग की एंट्री करने पे हम क्या करते हैं, परचेजिंग की एंट्री करने पे व्हाइल परचेजिंग the assets will be debited in the books of company on the basis of the rule of real account, and for this the vendor will be credited in the books of company. ठीक है, assets account debit to vendor account being assets purchased from the vendor। ये हो गई हमारी नरेशन। ठीक है, इसके बाद जो है हम जब इस असेट्स की पेमेंट करने के लिए कैश के बजाय डिवेंचर इशू करते हैं, तो while issuing the debenture, the normal accounting treatment as we have learned in the previous classes, that will be implemented here। और ऐसे कंडीशन में उस पार्टी को जिस डिवेंचर इशू किया जा रहा है, his vendor here, तो vendor will be debited on the basis of the rule of personal account, और इसके बाद X% डिवेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों है, दोनों में से कोई सा भी है, तो जैसे हमने एंट्री पढ़ी है, नॉर्मल एंट्री पढ़ी है, उसी नॉर्मल एंट्री के बेसिस पे डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, या फिर अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिस टू एंट्री विल बी कंसीडर आइदर द कंपनी में इशू द डिवेंचर एट पार or at premium or at discount, any one case will be implemented in the question। ओके, आपको तीनों कंडीशन एक साथ नहीं देगा, अज्यूम करने को दे सकता है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंट्रीज क्या होंगी, बट वी हैव टू रिकॉर्ड वन एंट्री एट अ टाइम। या तो हम डिवेंचर पे प्रीमियम की बात करेंगे, या तो डिस्काउंट की, या तो पार की।
ऐसी कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए अपनी कंडीशन को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कंपनी जो है कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में डिवेंचर इशू करती है तो अलग अलग केसेस में उसकी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसको कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और कैसे ये पूरा ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी के साथ जो मतलब एक्सटर्नल पार्टीज हैं वो इंटरेक्ट होकर के कंप्लीट करती है। ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल दैट इज रिटन बिफोर यू दैट अ कंपनी परचेज, कंपनी ने क्या किया, परचेज किया अ प्लांट दैट इज अ फिक्स्ड असेट्स, है ना, ऑफ ₹1,98,000 फ्रॉम ABC Limited. Here ABC Limited is a vendor and for the payment of the same, for the payment of this plant the company made as issuing debenture, issuing 12% debenture at 3 condition is given to you. At par means the value of the debenture is issued at par and at 10% premium, and or third situation is 10% discount. Here let us write the one more important information at 100 each, for 100 each at par premium और डिस्काउंट। यानी कंपनी ने 1,98,000 के डिवेंचर परचेज किए प्लांट, कंपनी ने 1,98,000 का प्लांट परचेज किया, ABC लिमिटेड से इसने परचेज किया तो ABC लिमिटेड वेंडर हो जाएगी और इस प्लांट की पेमेंट के लिए कंपनी ने 12% ₹100 वाले डिवेंचर इशू किए और इन डिवेंचर को आपको अलग अलग 3 कंडीशन में इशू किया। अगर एक बार अज्यूम करना है आपको कि डिवेंचर हैज बीन इशूड एट पार, दूसरी कंडीशन में डिवेंचर हैज बीन इशूड एट प्रीमियम, तीसरी कंडीशन में डिवेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, हर कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, लेट्स डील विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, केस 1 में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री in the books of company, journal entry in the books of company, कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या है। कंडीशन देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन जो है 3 तरीके की सिचुएशन हमारे सामने है। सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज डेट, दैट इज पार्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद जो है आ जाते हैं इसकी फॉर्मेट को कंप्लीट करने के बाद इसकी एंट्री पे। व्हेन वी परचेज द असेट्स, व्हेन वी परचेज द प्लांट विल बी डेबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, देन प्लांट अकाउंट विल बी डेबिटेड to vendor, the naming supply ABC Limited will be credited here and narration will be mentioned as being plant purchased from ABC Limited, from ABC Limited. Okay, अगर हम डिवेंचर को या प्लांट को कैश परचेज करते तो इस ABC लिमिटेड की जगह कैश लिखा जाता और ये सिचुएशन अगर नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती कि जिस कंडीशन में हम ABC लिमिटेड को पेमेंट के रूप में डिवेंचर इशू करते हैं। ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन कैश नहीं किया, ट्रांजैक्शन क्रेडिट किया, इसीलिए डिवेंचर को हम इशू कर रहे हैं। तो ये प्लांट जो है 1,98,000 का था, इसीलिए हमने 1,98,000 जो है प्राइस नोट में कंसीडर किया। ठीक है, अब इसके बाद
हर सिचुएशन में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, आइए देखते हैं। केस 1 में व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट पार, ठीक है। वन थिंग शुड बी नोटेड हियर दैट द नंबर ऑफ डिवेंचर to be issued will be calculated as परचेज कंसिडरेशन। जितना हमने परचेज किया है उस परचेज कंसिडरेशन को हम न्यूमरेटर में रख देंगे और परचेज कंसिडरेशन को हम डिवाइड कर देंगे फ्रॉम द प्राइस ऑफ डिवेंचर प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। प्रीमियम को प्लस कर देंगे और अगर डिस्काउंट होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिवेंचर। ओके, सो लेट अस रीड दैट इज द केस ऑफ पार। द परचेज कंसिडरेशन इज 1,98,000। कंपनी को 1,98,000 पे करना है। प्राइस ऑफ डिवेंचर इज 100 एंड नथिंग, नाइदर प्रीमियम और नॉट डिस्काउंट इज हियर, देन डायरेक्टली इट विल बी डिवाइडेड फ्रॉम the purchase consideration and the number of debenture will be 1,980. Okay, so that will be the number of debenture. Then in such case ABC Limited will be debited to 12%, whatever the percent rate is given, 12% डिवेंचर अकाउंट। ओके, नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार। ओके, अमाउंट इज रिक्वायर्ड सेम, दैट इज 1,98,000। ओके, because when we multiply the number of debenture with the price of transaction, the amount will be quite same. Okay, case 2, when we issued the debenture at premium. Okay, in that case number of debenture will be calculated as 198,000 divided by 1,000 plus 10, 100 plus 10, that means 110. Okay, that is 1,800 upon 110. Okay, so divide this from 11 and 11 8 ja 88, remaining 1800 will be the number of debenture to be issued. Okay, so in that case the entry will be ABC Limited will be debited to SPR to 12% debenture. The amount will be calculated as 1,800 debenture is issued at rupees 10%, rupees 10 of premium, and 1,800 debenture is being issued of 100 rupees. That means 1,80,000 as in the debenture account and 1,18,000 as in the premium. The sum total of all will be credited here. Okay, now when we talk about the case 3 where the debenture are issued at discount, that is the situation where 1,98,000 divided by 90, that means 100 minus 10 rupees discount. Okay, so in that case 9 will be divided as 2,200. It means now 2,200 debenture will be issued and the entry will be ABC Limited debit discount debit to 12% debenture. In that case the amount will be as 2,200 multiplied by 100. 2,200
multiplied by 10 and the remaining value will be transferred in this account, that is 1,98,000, 22,000 and here 2,20,000. This is the accounting treatment in the case of issue of debenture in the consideration other than cash in all the cases. Hope the concept is very much clear to you and अब इसके बाद आगे की एंट्रीज में, आगे की क्लासेस में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.